Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture, we studied about the characteristics, basic principles of fascism. They are nationalism, expansionism and occupation of foreign lands, favor of totalitarian state rule, then right to rule and subjugate the lands and people belonging to weaker nation, to doctrine people by making extensive use of media, education, public speeches and written material, rejection of capitalism and communism, against empowering the worker. In this lecture, we are going to study the characteristics of fascism. Fascism has been a significant 20th century development. See, fascism क्या है? Fascism played an important role in the 20th century. Originating from Italy and further maturing as an operational political doctrine in Germany, fascism could apparently be an enduring reality owing to its intimate ability in simplifying the complexity of political life to have the advantage of the prominent of fascism. See, we all know fascism came from Italy and then it went to the German. So fascism in reality क्या है, उसके पास एक ability थी ताकि it can have a complex political life so that the fascism can grow in a nice way. This was achieved by catering to exigency of us and they were not only projected as advertisers but initially inferior as well. This was achieved by catering the existency of us. यहाँ पे क्या है, अस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ना ही दे को है, बट यहाँ पे दे कौन है? दे वेर नॉट ओनली द प्रोजेक्टेड इन एडवर्टाइजर, लाइक एडवर्टाइजिंग में अपन जैसे बनाते हैं उनके लिए एंड ऑल, ये वैसा कुछ नहीं था, बट इट इज़ फॉर द इन्फीरियर एज वेल. ये किसके लिए सारा था? इट वॉज फॉर द इन्फीरियर. दिस पॉलिटिकल ड्यूरलिज्म aggressively articulated by fascism has however come to say even after the collapse of Italy and German after the Second World War. See, ये जो political dualism है ये क्या है? It came in fascism. It has however it collapsed after Italy and German after the Second War. अब ये fascism सब पहले बहुत अच्छे से चला, it played an important role, फिर धीरे धीरे ये कम हुआ, एकदम से कैसे हट गया? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटाली एंड जर्मन फासिज्म से ख़त्म हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फासिज्म. पावरफुल एंड कंटिन्यूइंग एक्सप्रेशंस ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम द प्रोमिनेंट डिस्प्लेस ऑफ फ्लैग्स एंड बंटिंग टू द unambiguous label pins, the flavor to show patriotism, nationalism, both on the part of the regime itself and of citizen caught up in its phrase, was always obvious. See, from अभी डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स कर रहे हैं, अपन अपने बैनर्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि वी शो दैट हाउ पेट्रोइज्म वी आर एंड हाउ नेशनलिज्म प्लेज हियर. सी, बोथ आर द पार्ट ऑफ, ये क्यों चल रहा है? ताकि सिटीजन को पता चले कि वी आर पार्ट ऑफ दिस नेशन. एवरीवन गेट्स दैट फीलिंग. दे वर कैची स्लोगन्स, प्राइड इन द मिलिट्री एंड डिमांड्स फॉर यूनिटी वेर कॉमन थीम एक्सप्रेसिंग द नेशनलिज्म. अब ये नेशनलिज्म, ये फीलिंग है, ये आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो? हाउ आर यू डूइंग दिस? बाय हैविंग सम कैची स्लोगन्स. लाइक अपने वहाँ पे कैसा था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए था ब्रिटिशर से, व्हाट वी यूज्ड टू से, वंदे मातरम एंड ऑल. वैसे उस वक्त भी कुछ कैची स्लोगन्स थे, प्राइड इन द मिलिट्री था एंड डिमांड, एक डिमांड थी कि आप सब यूनिटी बनाए रखो और अपना एक कॉमन चीज़ एक्सप्रेस करो, लाइक वी बिलोंग टू द सेम नेशन, हैव दिस कॉमन फीलिंग. इट वॉज यूजली coupled with the suspicion of things foreign that often broadened on xenophobia. See, it was, बट ये किसको लागू था? जो प्रॉपर उस स्टेट के हैं उनको लागू था. बाकी जो फॉरेनर्स हैं उनके बीच में ये फीलिंग हो रही थी क्या?
उनके बीच में ये फीलिंग आना इज बट ऑब्वियस, उनका फीलिंग एकदम न्यूट्रल था, लाइक उनके कंट्री के प्रति भी प्यार था और जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके प्रति भी प्यार है। सो बेसिकली दे हैड द न्यूट्रल फीलिंग, राइट। तो ये उनके लिए लागू ही नहीं हो रहा था। डिसडेन फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट। द रेजिमे themselves viewed human rights as of little value and a hindrance to realizing the objective of the ruling elite. See, the regime themselves viewed human rights, right? उसने human rights को कैसे देखा? The regime themselves viewed human rights को क्या है, कम वैल्यू दी, हाँ, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूलिंग एलाइट्स, और जो रूल कर रहा है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है यहाँ पे, राइट। मतलब ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंस नहीं, बट जो रूल कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ज़्यादा। वाह, क्या बात है ना, ऐसे होता है क्या किधर? अपनी इंडिया में तो ऐसा नहीं होता बाबा, बराबर बोल रही हो ना। इंडिया में रूलिंग पार्टी को इम्पोर्टेंस है और ह्यूमन राइट को इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, बट उधर ऐसे हुआ था। कौन से पॉइंट पे थे अपन? हाँ, थ्रू क्लेवर यूज ऑफ प्रोपोगंडा द पॉपुलेशन वॉज बॉट टू एक्सेप्ट दिस ह्यूमन राइट्स, अब्यूजिंग ऑफ, मार्जिनलाइजिंग, इवन डिमोनलाइजिंग एंड दोज बीइंग टारगेटेड। सी, थ्रू द, अभी अच्छे से स्लोगन वगैरह यूज़ किया, सब किया, तो क्या हो रहा था यहाँ पे? थ्रू द प्रॉपर प्रोपोगंडास, राइट। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोपोगंडास क्या कर रहे थे वो लोग? पॉपुलेशन को, सबको जो आपको राइट्स मिले हैं वही आप एक्सेप्ट करो, बाकी छोड़ दो। व्हेन अब्यूज वॉज इग्नोरियस द टैक्टिक वॉज टू यूज़ सीक्रेसी, डिनाइल एंड डिसइंफॉर्मेशन। सी, अभी टैक्ट क्या यूज़ की उन्होंने? सब कुछ लोगों तक नहीं जाना चाहिए, कुछ सीक्रेसी गवर्नमेंट तक ही रहनी चाहिए। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, मिलने दो, बट सही इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक ही रहेगी यहाँ पे। Identification of enemies, scapegoats as a unifying cause. See, the most significant common thread among this regime was the use of scapegoating as a mean to divert the people attention from other problem, to shift blame for failure and to channel frustration in controlled direction. See, यहाँ पे क्या है, अगर लोगों को पता चल गया और ये इसकी हालत बहुत बुरी है एंड ऑल है, तो लोगों के मन में क्या आता है? बहुत सी गलत भावना आती है कि गवर्नमेंट फेल है, तो लोगों का अटेंशन क्या करना है? किसी और प्रॉब्लम में डाइवर्ट कर दो, राइट। और लाइक ताकि आपके ऊपर किसी चीज़ का ब्लेम ना आए और जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप सॉल्यूशन निकाल के उसके ऊपर आप प्रॉपरली वर्क कर सको। द मेथड्स ऑफ चॉइस, रिलेंटनेस, प्रोपोगंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन वेर यूजुअली इफेक्टिव। सी, ये जो उसने मेथड अपनाया कि बाबा जो भी अपनी प्रॉब्लम है अपने तक रखो, लोगों को, अगर लोगों तक प्रॉब्लम जा रही है तो उनको मिसगाइड कर दो, ताकि अपनी प्रॉब्लम अपन यहाँ पे शांति से सॉल्व कर सकें, राइट। तो ये जो तरीका था, इट वॉज इफेक्टिव एट दैट टाइम। ऑफन द रेजिमे वुड इंसाइड spontaneous act against the target space code, usually communist, socialist, liberals, Jews, ethnic and racial minorities, traditionally national anthems, members of other religions, secularities, homosexuals and terrorists. See, often the regime would incite, अभी वो लोग क्या करते थे? फिर अंदर का अंदर वो लोग स्मार्टली एक्ट करते थे। अब इसमें कौन कौन रहते थे? सोशलिस्ट रहते थे, कम्युनिस्ट रहते थे, जूस, फिर अलग कास्ट के लोग रहते थे, ट्रेडिशनली नेशनल एनिमीज़ रहते थे, और अलग रिलीजन के लोग रहते थे, और टेररिस्ट भी रहते थे। ये सारे उस वक्त रहते थे वहाँ पे। एक्टिव अपोनेंट्स ऑफ दिस रेजिम वर इनएविटेबल लेबल्ड एज टेररिस्ट एंड डील्स विथ अकॉर्डिंगली। सी, एक्टिव अपोनेंट्स ऑफ दिस रेजिम। सी, एक्टिव, अगर एक्टिवली अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करे तो क्या है, आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे क्या? नहीं। दैट्स द पॉइंट। द सुप्रीमेसी ऑफ द मिलिट्री अविड मिलिटरिज्म। सी, रूलिंग एलाइट्स always identified closely with the military and the industrial infrastructure that supported it. See, ruling elite क्या है? It always identified closely with the military and the industrial infrastructure that supported it. See, रूलिंग एलाइट क्या है? उसने
हर चीज़ क्लोजली ऑब्जर्व की विद द मिलिट्री और इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ने इट वांटेड टू सपोर्ट इट. A disproportionate share of national resources was allotted to the military even when domestic needs were acute. See, एक अलग सा ही शेयर दिया जाता था नेचुरल रिसोर्सेज का मिलिट्री के लिए, राइट. भले ही अपने डोमेस्टिक नीड्स है, लाइक अपने अपने बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे, बट मिलिट्री को अच्छे से रखना है. यहाँ पे एक ही टारगेट है. द मिलिट्री वॉज सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. क्यों मिलिट्री को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था यहाँ पे? क्योंकि मिलिट्री प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सप्रेसिंग द रैशनलिज्म, राइट. रैशनलिज्म वो क्या कर रहे थे? अच्छे से एक्सप्रेस करते थे अपने नेशनलिज्म को. एंड वॉज यूज्ड व्हेनेवर पॉसिबल टू असर्ट नेशनल गोल्स, इंटीमेट अदर नेशंस एंड इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द रूलिंग एलाइट. सी, द मिलिट्री वॉज सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. और आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो ताकि आप आपके नेशनल गोल्स अचीव कर सको. इंटीमेट अदर नेशन, और आपका पावर बढ़ाने के लिए, आपका प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए मिलिट्री वॉज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर. देन रैम्पेंट सेक्सिज्म. Beyond the simple fact that the political elite and the national cultures were male dominated, this regime inevitably viewed women as second class citizens. See, पहले क्या था? men dominated society था. लाइक जो भी है सब men करेगा, men के हाथ में सब कुछ रहेगा, वुमेन के पास कुछ नहीं रहेगा. तो अभी क्या हो रहा है? वुमेन को भी दे आर लुकिंग एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन. दे वेर abundantly anti-abortion and also homophobic. This attitude were usually codified in draconian law that enjoyed strong support to the orthodox religions of the country, thus leading the regime cover on its abuse. यहाँ पे क्या हो गया? अब वुमेन को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दिया. क्यों? वुमेन ज़रूरी है फॉर हैविंग अ प्रॉपर रिलीजन. जो एकदम ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स वगैरह थे ना, वो सब किसको पता चलते थे? वो सब वुमेन को ही पता चल रहे थे. तो वुमेन को भी एक थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था. Then a controlled mass media. Under some of the regime, the mass media were under strict direct control and could be relied upon never to stray from the party line. See, under some of the regime, mass media किसके अंदर था? It was strictly under the control upon the party line. Like mass media का खुद का अपना कुछ नहीं रहेगा. mass media ये क्या है? It would be totally covered by the party. Other regime exercised more subtle power to ensure media orthodoxy. कुछ और भी रेजिमेंट थे, दे मेड श्योर कि बाबा मीडिया को थोड़े से पावर दे. मेथड्स इंक्लूडेड द कंट्रोल ऑफ लाइसेनिंग, एक्सेसिंग ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्रेशर, अपील टू पेट्रियटिज्म एंड इम्प्लाइड थ्रेट्स. अभी मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा था यहाँ पे? कैसे कंट्रोल किया जाता? कि लाइसेंस पे आपके कंट्रोल रहेगा, लाइसेंस देना नहीं जाना वो पार्टी पे डिपेंड रहेगा. देन एक्सेस टू रिसोर्सेस, हर जगह आपको एक्सेस नहीं मिलेगा. हाँ, ये इतना ही रिसोर्स है, इतना ही आपको यूज़ करने को मिलेगा, इससे आगे आप नहीं जा सकते. सी, जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो क्या है? पुलिस एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर देती है, लाइक इसके बियॉन्ड कोई नहीं जाएगा अपार्ट फ्रॉम पुलिस. तो मीडिया के लिए भी एक रिसोर्सेस एक्सेस करके दे दिया था और उसके ऊपर भी थोड़े से लिमिटेशन थे. इकोनॉमिक प्रेशर क्या है क्या नहीं मीडिया थ्रू पता चलेगा. अपील टू पेट्रियटिज्म, लाइक आपको देशभक्ति के बारे में ही सब कुछ लिखना है और इम्प्लाइड थ्रेट, और थोड़ा सा डरा के भी रखना है लोगों को. द लीडर्स ऑफ द मास मीडिया वेर ऑफन पॉलिटिकली कंपैटिबल विद द पावर इलाइट. क्या है? ये जो लीडर्स ऑफ द मास मीडिया थे वो क्या करते थे? पॉलिटिशियन के साथ थोड़ा सा मिलजुल के रहते थे. तो क्या है? उनको सारी खबर मिलती थी, मिर्च मसाला डाल के वो मीडिया वाले भी ये करते थे, जैसे आज चल रहा है तभी भी वैसे ही चल रहा था. द रिजल्ट वॉज यूजुअली सक्सेस इन कीपिंग द जनरल पब्लिक अनअवेयर ऑफ द रेजिमेस एक्सेसेस. सी, अब इसका रिजल्ट क्या हो गया? जनरल पब्लिक तक क्या है? एक्चुअल जो बातें पहुंचनी चाहिए थी, जो अंदर की बातें थी, वो पहुंचती ही नहीं थी. ऑब्जेक्शन विद इन नेशनल सिक्योरिटी. Inevitable, a national security apparatus was under direct control of the ruling elite. See,
इनएविटेबिलिटी क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी जो थी वो डायरेक्टली किसके अंडर थी, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलिंग एलाइट. It was usually an instrument of opposition operating in secret and beyond any constraint. See, it was usually क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट था ताकि आप सीक्रेटली सब काम कर सको और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप काम कर सको. आपका जो भी काम है वो सीक्रेटली और विदाउट एनी कंस्ट्रेंट आप अच्छे से काम कर सको. इट्स एक्शंस वेर जस्टिफाइड अंडर द rubric of protecting national security. See, its actions were justified under the rubric of protecting national security, and questioning its activity was portrayed as unpatriotic or even treasonous. See, its actions were justified under the rubric of protecting national security. अब वो एक्शन ऐसे क्यों करते थे, ताकि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी बचा के रखे. उनकी एक्टिविटी में भी ऐसे कोई क्वेश्चन ना उठाए कि बाबा आप देशभक्त, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, ऐसे कोई क्वेश्चंस ना उठा सके. नेक्स्ट इज द रिलीजन एंड रूलिंग एलाइट टाइड टुगेदर. अनलाइक कम्युनिस्ट रेजिम, द फासिस्ट एंड प्रोटो-फासिस्ट रेजिम वर नेवर प्रोक्लेम्ड एज गॉडलेस बाय देयर अपोनेंट. सी, अनलाइक कम्युनिस्ट में कैसा था, कम्युनिस्ट में ब्लेम वगैरह बहुत हुआ एंड ऑल. तो फासिस्ट में क्या हुआ, उनके ऊपर कभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा क्लेम डाल ही नहीं पाया. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रेजिम अटैच्ड देमसेल्फ टू द प्रोमिनेंट रिलीजन ऑफ द कंट्री एंड चूज टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज मिलिटेंट डिफेंडर्स ऑफ दैट रिलीजन. सी, इनफैक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द रेजिम अटैक्ड देमसेल्फ टू द प्रोमिनेंट रिलीजन. क्या हुआ, बहुत लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्रोमिनेंट रिलीजियस ऑफ द कंट्री बोल के खुद पे दावा किया, एंड दे पोर्ट्रेट देमसेल्फ एज द मिलिट्री डिफेंडेंट ऑफ दैट रिलीजन. वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करना मेरा धर्म है. द फैक्ट दैट द रूलिंग एलाइट बिहेवियर वॉज इनकम्पेटेबल विद द परसेप्ट ऑफ द रिलीजियस वॉज जनरली स्वेप्ट अंडर द रग. सी, अभी एक फैक्ट था, जो रूलिंग पार्टी थी उनका बिहेवियर अगर गलत भी हो रिलीजियस के उधर, तब भी कोई कुछ नहीं बोल पाता था. क्यों नहीं बोल पाते थे कोई कुछ भी, वो तो उनका पावर था ना, वो उसका पावर था कि कोई उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा बोल के, राइट. प्रोपोगंडा kept up the illusion that the ruling elite were defender of the faith and opponents of the godless. See, प्रोपोगंडा क्या है, kept up the illusion. उन्होंने एक illusion रखा, ये जो रूलिंग elite है, they were the defender of the faith and opponent of the godless. A perception was manufactured that opposing the power elite was tantamount to an attack on religious. अब लोगों ने परसेप्शन बना दिया कि बाबा जो अपोजिंग, जो भी अपोज करेगा देवर उनके पर एक अटैक किया जाएगा. नाउ पावर ऑफ कॉरपोरेशंस प्रोटेक्टेड. ऑल्दो द पर्सनल लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन was under strict control, the ability of large corporator to operate in relative freedom was not compromised. See, यहाँ पे नाजिज्म की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, बट ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल किसके ऊपर नहीं था, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स थे, जो लार्ज कॉरपोरेटर थे, उनको पूरी फ्रीडम थी, उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था. द रूलिंग एलाइट सॉ द कॉरपोरेट स्ट्रक्चर एज अ वे नॉट ओनली टू एंश्योर मिलिट्री प्रोडक्शन बट ऑल्सो एन एडिशन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रूलिंग पार्टी वगैरह थी उन्होंने क्या देखा कि बाबा ये कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, उससे अपने को क्या मिलेगा, मिलिट्री प्रोडक्शन मिलेगा, राइट. मिलिट्री को अगर अच्छे जो जो इनको चाहिए वो सब कुछ प्रोडक्ट करके यहीं पे, या उनका प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है, और मिलिट्री को आपको जो भी चाहिए मटेरियल वगैरह सारा सब कुछ ये कॉरपोरेट से मिल रहा है, तो उन पर मैं रिस्ट्रिक्शंस क्यों लाऊं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन हैव अ एडिशनल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन हैव अ सोशल कंट्रोल ऑल्सो. मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एलाइट were often pampered by the political elite to ensure a continued mutual of interest, especially in the repression of have-not citizens. See, members of the economic elite. अभी ये जो members थे, जिनको जो कॉर्पोरेट में वगैरह थे,
वो क्या करते थे, उनके साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी, वो उनके ऊपर बहुत मेहरबान थी, उनको बहुत प्यार से रखती थी, पैम्पर्ड करके रखती थी। क्यों करती थी? ताकि दोनों की इच्छा पूरी हो सके। उनका जो मिलिट्री को सपोर्ट चाहिए वो इनसे मिल रहा था, और सोशल कंट्रोल भी इनसे ही मिल रहा था, कॉरपोरेट से ही मिल रहा था। तो क्या है, वो दोनों अपना अपना इंटरेस्ट बचा के रख रहे थे। We'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll study the power of labor suppressed or eliminated. Thank you. If you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.